we start the session, I request all our speakers to please switch off your mics and cameras, except our guest speaker. Very good afternoon to respected dignitaries, governing body members of RAV, Director RAV, Dr. Vandana Siroha Ma'am, Gurujans. I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. I, Dr. Garima Singh, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for the sustenance of this series. Respected Vaidya Sri Devendra Tribhunaji, President of GB RAV, respected Vaidya Sri Rajesh Kuteja Sir, Secretary, Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director RAV. Today's guest speaker is Vaidya Vinay Vasudev Velankar Sir, CRAV Guru in Kai Chikitsa, Maharashtra, who has joined us today in the 260th episode of this knowledge voyage. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantari. Namami Dhanvantarimaadidevam Surar Surarvandit Padipadmam Loke Jararu Mrityunasham Dhataramisham Vividhoshadhinam. Om Dhanvantari Namah. Now, I would like to introduce today's expert, Vaidya Vinay Vasudev Velankar Sir, who is going to throw light on the topic Tikth Basti. Vaidya Vinay Vasudev Velankar Sir is a distinguished Ayurvedic physician with over 4 decades of experience in clinical practice, education, research, and public health. A BMS graduate from Ayurved Mahavidyalaya, Sion, Mumbai, he has served in various professional, social, and academic organizations and contributed significantly to the promotion of Ayurveda across India. He has delivered more than 1,000 lectures, authored numerous articles and books, and participated in television, radio, and public awareness programs. Recipient of several prestigious national and international awards, he has also served on regulatory and advisory committees advancing Ayurvedic healthcare and education. Now, I would like to invite Sir to proceed with the lecture. Thank you, sir. नमस्ते सभी को। आरएवी के डायरेक्टर आदरणीय वैद्य त्रिगुणा जी, डायरेक्टर वैद्य वंदना जी, आरएवी के सभी गुरु और सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज का मेरा विषय तिक्तक्षीर बस्ती, इस विषय के ऊपर मेरा व्याख्यान होने वाला है। मेरा भाग्य ऐसा है कि 15 दिन पूर्व धुलिया के वैद्य प्रवीण जोशी ने बस्ती के ऊपर अच्छा व्याख्यान दिया है, तो मेरा आधा काम उन्होंने किया है। अभी मैं खाली तिक्तक्षीर बस्ती के ऊपर आपको कुछ संबोधन करने जा रहा हूँ। आपको याद है कि बस्ती यह आधी चिकित्सा बताई गई है। शोधन और शमन ऐसे चिकित्सा में से शोधन चिकित्सा में सब पंचकर्म आते हैं और बस्ती को आधी चिकित्सा ऐसे बताया है। तो लेकिन आपने काफी वैद्य पंचकर्म प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बस्ती को आधी चिकित्सा क्यों बताया है? आज का मेरा व्याख्यान सुनने के बाद शायद किसी को मालूम हो जाएगा कि ये सही जो ग्रंथों ने बताया है वो हो सकता है। बस्ती का बारे में वैद्य प्रवीण जोशी ने जो बताया उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें निरोह, योग बस्ती, काल बस्ती, वैतरण बस्ती, लेखन बस्ती, ऐसे सब अलग अलग मात्रा बस्ती प्रकार आए हैं। उसमें एक तिक्तक्षीर बस्ती है। तो डे टू डे प्रैक्टिस में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। इसलिए तिक्तक्षीर बस्ती ऐसे छोटे टॉपिक के ऊपर आज का मेरा व्याख्यान सीमित रहेगा। नेक्स्ट, तिक्तक्षीर के बारे में अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में काफी कम जानकारी है। 3 रेफरेंस प्रायः अपने को टेक्स्ट में देखने के लिए मिलते हैं। पहला है आस्त्याशराणाम व्याधीनाम पंचकर्माणि भेषजम बस्तया क्षीर सर्पिषु तिक्तकोपयितानि, ऐसे चरक सूत्रस्थान
28 में ये पहला रेफरेंस आया है। दूसरा रेफरेंस है मध्य शुक्र समुत्थानम औषधम स्वादु तिक्तकम अन्नम व्यवाय व्यायामो शुद्धि काले च मात्रया, ऐसा चरक सूत्र सन 28 में सेकंड रेफरेंस है। तीसरा रेफरेंस है स्थौल्य कार्शोपचारेण मेधोजाम अस्थि संक्षयात जातन क्षीरगुतहि तिक्त संपत बस्तिभिः तथा, यानी ये तीन ही रेफरेंस अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में आए हैं। तो ये तिक्त क्षीर बस्ती आस्ताश्रयणम व्याधिनाम अस्थि मज्जा शुक्रगत जितने व्याधि है उसमें इसका अच्छा उपयोग देखने के लिए मिलता है और देने में प्रैक्टिकली अत्यंत सुविधाजनक है और जिसके रिजल्ट अत्यंत फायदेमंद है ऐसे हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये तीन ही रेफरेंस अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में आता है। नॉर्मली सभी वैद्य पंचतिक्तक का इस्तेमाल इसमें करते हैं, लेकिन मैं और मेरे सहकारी जो तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं उसमें 4 ही औषधि घटक हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें गुडुचि, तिक्तपटोल, किराता तिक्ता और यष्टिमधु, ऐसे 4 द्रव्यों का इस्तेमाल मैं करता हूँ। नेक्स्ट टाइम प्लीज। गुडुचि का वर्णन आपने सबने पढ़ा है, खाली आपके एक बार रिवीजन के लिए गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाका रासायनिक संग्राहिणी कषाय उष्णा लघ्वी बल्या अग्निदीपनी दोषत्रयाम त्रुट दाह मेह कासांश पांडुताम कामाला कुष्ठ वातास्र ज्वर कृमि वमिर हरे। गुडुचि अपने जीवनीय रसायन में सर्वश्रेष्ठ वनस्पति बताए हैं। गुडुचि के अन्य भी रेफरेंस है, उसमें श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमनानाम, ऐसा एक गुडुचि का अच्छा रेफरेंस चरक सूत्र स्थान में आया है। गुडुचि गुरु उष्ण वीर्य तिक्ता कषाय ज्वर नाशिनी, ज्वरग्न चिकित्सा में गुडुचि का अनन्य साधारण महत्व है। वात रक्त प्रमेह ऐसे सभी प्रकार के। नेक्स्ट साइड प्लीज। कंदोद्भव गुडुचि कटुष्णा सन्निपातः विषग्नि ज्वर भूतग्नि वली फलित नाशिनी, ऐसा भी एक धन निग्रह का रेफरेंस है। तो ये जो गुरु जी के फायदे अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में बताए हैं, इतने सभी विकारों में तिक्त क्षीर बस्ती का हम उपयोग कर सकते हैं। आगे के मेरे व्याख्यान में इसका संदर्भ देखने के लिए मिलेगा। पटोल, तिक्त पटोल के जो गुणधर्म है, पटोल कफ पित्त हरम वर्ण्यम उष्णम तिक्तम वातलम पटोलम कटुकम पाके वृक्षम रोचन दीपम, ये तिक्त रस का प्रदान होने के बावजूद भी वृक्ष है। पटोलम कटुकम तिक्तम उष्णम पित्त विरोधी च कफ अश्रु कंडु कुष्ठानि ज्वर दाह नाशय, ऐसा धन निग्रह का रेफरेंस है। तो ये त्वचा विकार में, पित्त विकार में, कफ विकार में, ज्वर और ऐसे सभी विकारों में इसका अपने को उपयोग देखने के लिए मिलता है और प्रायः वृक्ष है तिक्त रस प्रदान होने के बावजूद। भवेन मूलम पटोलस्य भवेन मूलम विरेचन करम सुखात नालम श्लेष्महरम पत्रम पित्तहारी फलम पुनः दोषत्रयहरम प्रोक्तम तद्वत तिक्त पटोलिका, ऐसा भाव प्रकाश का वर्णन आया है उसमें। पटोल पत्रम पित्तग्नम नाड़ी तस्य कफापः फलम तस्य त्रिदोषग्नम मूलम तस्य विरेचनम। पटोल का पंचांगम हम तिक्त क्षीर बस्ती में उपयोग में करते हैं, क्योंकि उसके पत्ते का, उसके नाल का अलग अलग गुणधर्म इसमें बताया है। तीसरा द्रव्य है जो किरात तिक्त, किरात सारको वृक्ष शीतला तिक्त को लघु सन्निपात ज्वर श्वास कफ पित्तास्त्र दाहन कास शोष तृषा कृश ज्वर वर्ण कृमि प्रणुत, ऐसे किरात तिक्त का वर्णन आया है। किरात को रसे तिक्त रस शीतो लघु तथा श्लेष्म पित्तास्त्र शोफार्श कास तृष्णा ज्वरापहा, ये जो उसकी फलश्रुति है, इतने सभी विकारों में तिक्त क्षीर बस्ती का उपयोग हम करते हैं और अच्छा रिजल्ट देखने के मिलता है। इसमें खाली किरात तिक्त रस प्रदान होने के बावजूद भी वृक्ष ऐसे नहीं है, बाकी तीनों द्रव्य ये वृक्ष है। आगे का द्रव्य है यष्टि मधु। यष्टि मधु आपको सबको याद है कि यष्टि मधु ऐसा द्रव्य है कि जितने अपने द्रव्य गुण में गण बताए हैं, हर एक गण में यष्टि मधु का अंतर्भाव आता है। यष्टि हेमा गुरु स्वाद्वी चक्षुषा बलवर्ण कृत सुस्निग्धा शुक्रला केशा स्वर्या पित्त अनिलाश्रजित व्रणोथ विष छर्दी तृष्णा ग्लानि क्षयापहा, ऐसा भाव प्रकाश के ग्रंथों में गुरु जी का यष्टि मधु का वर्णन आया है।
तो ऐसा एक यष्टि मधु रसायन औषध है और सभी विकारों में उपयुक्त होता है। अपने यहाँ चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 2 में वृक्ष मधु का योग ऐसे एक योग आया है। कर्ष मधु का चूर्ण से घृत क्षौद्र समान्वितम पयो अनुपानम यो लिह्यात नित्य वेग सना भवेत। कर्ष एक कर्ष मधु का चूर्ण घृत क्षौद्र यानी मधु एकत्रित करके दुग्ध के अनुपान से हम सेवन करें तो उसे वृक्ष अत्यंत परम वृक्ष ऐसे इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। काफी समय तक आप शरीर संबंध रख सकते हैं। ऐसा यष्टि मधु एक अच्छा कल्प द्रव्य आपने यहाँ बताया है। अभी तिक्तक क्षीर में तिक्तक रस के गुणधर्म आपने यहाँ क्या बताया है? तिक्तम स्वयं अरुचि उष्ण अरुचिम कृमित्रुत विषम कुष्ठ मूर्छा ज्वरोत्क्लेश दाह पित्त कफान जयत क्लेद मेदो वसा मज्जा शक्रुन मूत्रोपशोषण ऐसे वर्णन आया है तिक्तक क्षीर का। इसमें क्लेद मेदो वसा मज्जा शक्रुन मूत्रोपशोषण ये सबसे महत्व का है, बाकी के तो सब है ही। लघु मेध्या हिमो वृक्षा स्तन्य कंठ विशोधनम ये भी ध्यान में रखने वाला है। स्तन्य शोधन करने वाला कंठ विशोधन और मेध्य है पित्तरस। इसलिए आगे के अपने अनुभव आप सुनेंगे तो उसका अंतर्भाव क्यों किया है ऐसे मालूम हो जाएगा। ये 4 ही द्रव्य हमने क्यों चुने हैं? क्योंकि ये अपवाद द्रव्य है। अष्टांग हृदय का सूत्र आपने सुना है, तिक्तम कटुच भूयिष्ठम अवृश्यम वातकोपनम ऋते अमृता पटोलिभ्याम शुंठी कृष्णा रसोन्नतः। कटु और तिक्त रस होने के बावजूद भी अमृता पटोली शुंठी यष्टि ये द्रव्य वृक्ष है। इसलिए हमने ये तिक्तक क्षीर बस्ती में चारों द्रव्यों का अंतर्भाव किया है। इसलिए ये तिक्तक क्षीर बस्ती दीर्घकाल देने से उससे कुछ नुकसान नहीं होता या उसके साइड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का निरंतर सेवन करने से वातों प्रकोप होता है और शुक्र ग्रह ऐसा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये सब अपवाद द्रव्य है और उसके साथ क्षीर और घृत भी रहता है, तो ये भी दोनों वृक्ष है। तो तिक्त रस के अन्य वैशिष्ट्य में वो बद्धमलकर और लघु है अत्यंत। क्षीर के सबको गुण आपको मालूम है। क्षीर गव्यम तु जीवनीयम रसायनम शतक क्षीण हितम मेध्यम बल्यम स्तन्यकरम सरम श्रम मद लक्ष्मी श्वास कास अतित्रुट क्षुधा जीर्ण ज्वरम मूत्र कृच्छम रक्तपित्तम च नाशय। क्षीर का मतलब गो क्षीर लेना चाहिए, लेकिन व्यवहारता हर बार तिक्त क्षीर बस्ती लेने के समय ये गो दुग्ध मिलेगा ऐसा नहीं, तो हम महिष दुग्ध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुणों में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर गो दुग्ध का इस्तेमाल आप करेंगे तो उसका उपयोग अच्छी तरह से देखने के लिए मिलता है। तिक्त क्षीर बस्ती का निर्माण कैसे करना, ऐसे आपने शारंगधर में उसका वर्णन आया है। क्षीरम अष्टगुणम द्रव्यात क्षीरात क्षीरात नीरम चतुर्गुणम क्षीरावशेषम तत्पीतम शूलम आमोदभवम जयत। यानी क्षीर अष्टगुणम जो द्रव्य आप बस तिक्त क्षीर का भरड़ लेंगे उसे 8 गुना क्षीर, उससे 4 गुना नीर यानी पानी लेना है और वो उबाल कर पानी कम होने तक वो दूध आप रखेंगे तो ये मात्रा जैसे 10 ग्राम की भरड़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 8 भाग दूध यानी 80 ml दूध हो जाएगा और उसमें 320 ml पानी डालकर वो 80 ml तक कम करना और ये जो क्षीर बाकी रहेगा उसमें घृत मिला के उसका बस्ती देना है। लेकिन इतना समय और इतना क्वांटिटी लेने की व्यवहारता आवश्यकता नहीं रहती, ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। तो हम 10 या 15 ग्राम की भरड़ लेते हैं, ये चारों द्रव्य समान एकत्रित करके उससे 1.5 कप यानी अप्रोक्सीमेटली 120 ml दूध लेते हैं और उसे आधा 60 ml पानी डालकर वो उबाल कर आधा करते हैं। तो मात्रा बस्ती की जैसी मात्रा होती है वो 100 या 120 ml की मात्रा तिक्त क्षीर में हम देते हैं और उससे काफी अच्छा परिणाम हम देखते हैं। आगे के मेरे व्याख्यान में उसका आप अनुभव करेंगे। तो ऐसे ही तिक्त क्षीर बस्ती जो है उसमें और एक जानकारी मैं आपको देता हूँ कि
तिक्त क्षीर बस्ती घृत सहित देना है, घृत या स्नेह द्रव्य के सहित। आपने अभी भारत ने अंतरिक्ष में यान छोड़ा है, वो यान जब भी जाता है तो उसे पीछे अग्निबाण रहता है। प्रत्यक्ष सैटेलाइट जो है वो छोटा ही रहता है, उसका वजन भी 60-70 किलो, 100-150 किलो, इससे ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन वो अग्निबाण जो है, वो अग्निबाण उसको अंतरिक्ष में लेकर जाने का काम करता है। वैसे तिक्तक्षीर जो है, उसमें जो हम घृत इस्तेमाल करते हैं, वो पंचगव्य हो, जीवनत्यादि हो, जो भी, वो घृत अल्टीमेटली काम करता है, और ये तिक्तक्षीर जो है वो अग्निबाण जैसे काम करता है, ऐसे आपको महसूस हो जाएगा। इसलिए ये तिक्तक्षीर बस्ती जो है सघृत या स्नेह द्रव्य के साथ ही देना चाहिए। तो ऐसे आप, इसके लिए काल मर्यादा नहीं है। मात्रा बस्ती होने के कारण से सुबह, दोपहर, शाम को, खाना खाने के पहले, बाद, कभी भी दे सकते हैं। अन्यथा बाकी बस्ती के लिए कुछ काल मर्यादा तय हुई है। ये भोजन के पश्चात भी दे सकते हैं, रात को सोते समय दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। तो ऐसे ये तिक्त क्षीर बस्ती जो है, मेरे प्रैक्टिस में काफी बड़ी मात्रा में मैं इसका उपयोग करता हूँ। सबसे महत्व का जो व्याधि है आजकल हम देखते हैं, ज्वर, ज्वर कंट्रोल करना, ये सबसे महत्व की बात रहती है। अभी के सिनेरियो में जो ज्वर देखने के लिए मिलता है, वो जीर्ण ज्वर इस प्रकार का है, यानी 1 महीने से ज्वर है, 2 महीने से है। ये जो मैं केस आपको बता रहा हूँ, वो जो लड़का था उसको 3 साल तक बुखार आता था, और उसके जो पिताजी थे वो एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में डायरेक्टर थे। सभी प्रकार के हॉस्पिटल मुंबई के जितने बड़े हैं, वो उसमें उसकी ट्रीटमेंट हुई थी, लेकिन डायग्नोसिस कुछ भी नहीं, यानी कॉक्स नहीं, कैंसर या अन्य प्रकार की। लेकिन वो बुखार कम नहीं हो रहा था। किसी के माध्यम से वो मेरे पास आ गया, तो मैंने उसका जीर्ण ज्वर ऐसे निदान कर कर बाकी आभ्यंतर चिकित्सा के साथ उसको तिक्तक्षीर बस्ती देने का निर्णय किया। तिक्तक्षीर और उसमें महातिक्त घृत, आपको सबको याद है उसके गुणधर्म क्या है। तो ये तिक्त रस क्यों? तो तिक्त रस ज्वर रसगत आम का पाचन करने वाला और ज्वर नाशन में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे ये तिक्तक्षीर बस्ती मैंने देने के बाद 8 दिन के अंदर उसका ज्वर पहले कम हो गया, और 15 दिन के बाद उसको ज्वर नहीं। बाद में काफ़ी दिन तक मैंने ये बस्ती और आभ्यंतर चिकित्सा किया था, लेकिन अभी इस साल को 20-25 साल हो गए, बाद में उसको ज्वर कभी आया नहीं। तो ऐसे जीर्ण ज्वर की जिसे हम एक्सट्रीम कहते हैं, ऐसे केस में भी एक सामान्य तिक्तक्षीर बस्ती का उपयोग आप करेंगे, तो उसका महातिक्त घृत और तिक्तक्षीर से जो घृत डालना है, उसकी मात्रा साधारणतः 15 से 20 ml आप दे सकते हैं, यानी 100 या 120 ml तिक्तक्षीर, 20 ml घृत, ऐसे मिलाकर कोश न करना, और उसका आप बस्ती दे देना, ऐसे कर सकते हैं। बाद में स्तन्य वृद्धि, तिक्त क्षीर काफी डिलीवरी के बाद महिलाएं आती है कि आजकल तो ये प्रमाण काफी मात्रा में बढ़ा है कि स्तन्य नहीं आता है। मार्केट में जो स्तन्य की वृद्धि के लिए दवा मिलते हैं, उसमें आप द्रव्यों की मात्रा काफी कम रहती है। जैसे शतावरी कल्प लोग लेते हैं, लेकिन 1-1 चम्मच, 2 चम्मच लेने से स्तन्य वृद्धि नहीं होती है। उसके प्रति उसके बदले आप तिक्तक्षीर और शतावरी घृत ऐसे उनको बस्ती दे देंगे तिक्तक्षीर, तो तीसरे दिन से स्तन्य वृद्धि होती है। अपने यहाँ सद्य शुक्र कराणाम श्रेष्ठ ऐसे वर्णन आया है। तो ये तिक्त क्षीर बस्ती से स्तन्य वृद्धि होती है, और स्तन वृद्धि के लिए भी उसका उपयोग होता है। युवावस्था में काफी लड़कियां आते हैं कि जिनके स्तनों की वृद्धि नहीं है, तो अश्वगंधादि तेल से मालिश करना और तिक्त क्षीर और या शतावरी घृत ऐसे आप करते हैं, तो ये स्तन वृद्धि भी होती है, और स्तन्य वृद्धि के तो मैंने काफी अनुभव उसके लिए हैं। बाद में ओलिगोस्पर्मिया, अभी के सिनेरियो में वंध्यत्व के पेशेंट काफी मात्रा में बढ़े हुए हैं। उसमें एक ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया ऐसे अलग अलग प्रकार देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसमें शुक्राणु की संख्या कम है, उसमें तिक्तक्षीर और अश्वगंधा घृत और उसमें कवच बीज चूर्ण ऐसे डालकर आप उसके बस्ती देते हैं, तो 1 महीने के अंदर काफी परिणाम देखने के लिए मिलता है।
कवच बीज चूर्ण आपको मालूम है वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और अपने यहाँ वृक्ष द्रव्य में उसका अंतर्भाव होता है। उसे शुक्र की मात्रा और अर्ज यानी संभोग करने की इच्छा जो है वो भी बढ़ती है। तो ये ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट में तिक्तक क्षीर, उसके साथ अश्वगंधा घृत और कवच बीज ऐसे आप मिलाकर देते हैं तो काफी मात्रा में स्पर्म काउंट बढ़ता है। आजकल तो मैं देखता हूँ तो 10 लाख 12 लाख से ज्यादा काउंट नहीं रहता है, वो 50-60 लाख तक काउंट होता है। तीसरा व्याधि है पांडु। ये भी पेशेंट आजकल प्रैक्टिस में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं और वो पेशेंट ऐसे हैं कि इनका हीमोग्लोबिन लेवल 8, 8.5, 9, 9.5 इससे ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो ऐसे पांडु के पेशेंट में आप आयरन कंटेंट वाले द्रव्य कितने भी दे दो उसे उपयोग नहीं होता है। तो उसके बदले तिक्तक क्षीर और दाढ़ी मादी घृत ऐसे आप करेंगे तो पांडु के पेशेंट ठीक होते हैं। वो हीमोग्लोबिन धीरे धीरे 1-1.5-2 महीने के अंतर 10-12 ग्राम तक चलता है। अदरवाइज आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो भी 1 पॉइंट देने के बाद 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके बदले तिक्तक क्षीर और दाढ़ी मादी घृत उसका आप उपयोग करते हैं तो पांडु के केस में यानी रुग्णों में अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलता है। अभी के सिनेरियो में पार्किंसंस यानी कंपवात के काफी रुग्ण देखने को मिलते हैं। कंपवात में जो सो कॉल्ड मॉडर्न के जो द्रव्य इस्तेमाल होते हैं उसके काफी दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए लोग बाद में उसका प्रमाण कम करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में तिक्तक क्षीर, उसमें अश्वगंधा घृत और कवच भी आप मिलाकर देते हैं तो कंपवात का प्रमाण कम होता है। वो ये अल्टरनेट डे या नित्य ऐसे कभी भी दे सकते हैं, रात को सोते समय, सुबह, दोपहर को, जैसे रुग्ण को और आपको समय अनुकूल हो ऐसे दे सकते हैं। आपको मालूम है कवच बीज का जो एनालिसिस है उसमें डोपामाइन है और जो मॉडर्न के ड्रग देते हैं उसमें भी डोपामाइन है। तो ये डोपामाइन हम अंदर यानी बस्ती के मार्ग से देते हैं तो उसका कुछ नुकसान है। एक तो कवच बीज में हम देते हैं तो उसके डेरिवेटिव नहीं है तो उसके दुष्परिणाम कुछ देखने के लिए नहीं मिलते। इसमें एक ध्यान देना चाहिए, कवच बीज आजकल मार्केट में मिलता है वो एक काले रंग का है और एक सफेद रंग का है। काले रंग का है वो महाराष्ट्र की धरती में होता है और सफेद रंग का प्राय गुजरात और अन्य प्रांतों में। तो काले रंग का जो कवच बीज है वही इस्तेमाल होना चाहिए, वही उपयुक्त है। सफेद रंग का कवच बीज का उपयोग नहीं होता। तो अश्वगंधा घृतक कवच बीज और तिक्तक क्षीर ऐसे आप एकत्रित करके पस्ती देते हैं तो कंपवात के रुग्णों में उसका अच्छा परिणाम हम देखते हैं। अभी ये सब जो बस्ती मैंने बताया है उसमें काफी लोगों के मन में शंका हो कि कितने बस्ती देना है। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, नॉक द डोर टिल गेट ओपन। जब तक उपयोग नहीं, दरवाजा खुलता नहीं तब तक बजाना है। वैसे रिजल्ट नहीं मिलते तब तक ये देना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म देने से उससे नुकसान नहीं, उसकी आदत नहीं लगती है और पेशेंट के रिजल्ट तो मिलते ही है। तो ऐसे ये तिक्तक क्षीर एक बहुत ही फायदेमंद प्रकार है और हम डे टू डे प्रैक्टिस में इजीली उसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल नेत्र रोग के पेशेंट मैं काफी देखता हूँ और बाकी सब लोग भी, उसमें एज के अनुसार या डायबिटिक के बाद डीजनरेशन ऑफ रेटाइना ऐसे पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। डायबिटिक रेटाइनोपैथी है तो उसमें आजकल जो लेजर ट्रीटमेंट या अन्य ड्रॉप्स या स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं उसके बदले आप तिक्तक क्षीर, जीवनत्यादी घृत या शतावरी घृत ऐसे अल्टरनेट करके आप उसका प्रयोग करते हैं तो रेटाइना यानी दृष्टि मांद्य हुआ है वो धीरे धीरे कम होता है, दृष्टि सुधर जाती है और अच्छा परिणाम हम देखते हैं। ये डिजेनरेटिव टाइप ऑफ डिसीज जितने भी हैं उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती का एक अलग ही उपयोग हम देखते हैं। तो नेत्र व्याधि में आजकल मैक्युलर एडिमा है या डिटैचमेंट है, रेटिनल डिटैचमेंट, ऐसे भी पेशेंट में कम तिक्तक क्षीर बस्ती का उपयोग हम कर सकते हैं। आजकल एक बड़ा स्पेक्ट्रम प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलता है वो जॉइंट और स्पाइन डिसऑर्डर, संधिवात या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क या ऐसे सभी प्रकार के। तो इसमें भी आजकल तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी
इन्होंने तो काफी हंगामा मचाया है, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है वो डॉक्टर ने बताया कि ये जॉइंट बदलना पड़ेगा। एक दोनों जॉइंट भी आजकल एक दिन के छोड़ के बदलते हैं। तो ऐसे काफी पेशेंट के जिनके जॉइंट बदलने का एडवाइस दिया था, जिनका मैंने एडवाइस कम किया, यानी जॉइंट बदलना का डिसीजन बदल कर उनको अपने तिक्तक्षीर बस्ती के माध्यम से उपचय दिया है। ऐसे पेशेंट की संख्या सैकड़ों में है। यानी एक जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं सर्जरी, तो उसको 1.5-2 लाख का खर्चा आता है। मैं मेरे इतने पेशेंट का काउंट करूं तो कम से कम 1 सवा करोड़ लोगों के मैं पैसे बचाए हैं। तो ये संधिवात जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वात प्रधान संधिगत वात, उसमें ये डीजेनरेशन जो रहता है उसमें ऑस्टियोफाइट्स बढ़े हुए रहते हैं। जो जॉइंट का बीच में कुर्चास्थि है वो सिकुड़ जाती है, और उसके वजह से संधियों में आवाज आना, संधि ग्रह, संधि में वेदना, ये सब लक्षण रहते हैं। तो तिक्तक्षीर बस्ती हम देते हैं। तो तिक्तक्षीर में अस्थि मज्जा घृत, अष्टांग हृदय का पाठ है, उड़ूची, आमोल की और गोक्षुर, ऐसे द्रव्यों से सिद्ध करके तो हम अस्थि मज्जा घृत बना सकते हैं। शतावरी घृत या महातिक्त घृत ऐसे भी बदल बदल कर सकते हैं। कितने बस्ती देना है? मेरे पास एक वयस्कर यानी बूढ़ी औरत आती थी संधि का, तो उसको उसकी समस्या ऐसी थी, शायद उन्होंने कभी क्रोसिन या पैरासिटामोल की गोली लिया तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता था। तो एक भी एलोपैथी ड्रग वो सहन नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो संधिवात के लिए मेरे पास आ गई। तो उनका जॉइंट परीक्षण करने के बाद अपने यहाँ संधिशोष बताया है, वो सब उसमें हुआ था। तो लोकल एप्लीकेशन और अभ्यंतर चिकित्सा के साथ मैंने तिक्तक्षीर बस्ती देना शुरू किया। मैंने कितनी बस्ती दी है आज तक? कम से कम 400 से ऊपर उसके बस्ती हो गए, लेकिन अभी वो 1.5 किलोमीटर का अंतर वो पैदल जा सकती है। और अभी भी डिस्पेंसरी में बीच बीच में अगर कुछ समस्या है तो दवा के लिए आती है। तो ये संधिवात में इतने बस्ती कभी-कभी देना पड़ता है, ये एक्सट्रीम केस है। अन्यथा 40, 50, 60 बस्ती में काम होता है, लेकिन इट डिपेंड अपॉन पेशेंट सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। तो ये ऐसे मैंने 400, 450 तक बस्ती तिक्तक्षीर का उपयोग किया है। ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे लोग पेशेंट आते हैं और कैल्शियम, फास्फोरस या विटामिन डी, विटामिन ए टैबलेट और गोली खाते रहते हैं। तो उसके बदले आप तिक्तक्षीर बस्ती का प्रयोग करते हैं तो काफी परिणाम अच्छा देखने के लिए मिलता है। ये स्पाइन डिसऑर्डर में स्लीप डिस्क है, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस है, बाद में लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें भी स्नेहन स्वेदन के साथ पहले योग बस्ती करने का और बाद में तिक्तक्षीर बस्ती का प्रयोग करते हैं तो स्टेनोसिस भी ठीक हुए। ऐसे मेरे पास काफी पेशेंट हैं। अदरवाइज मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार स्टेनोसिस नॉन रिवर्सेबल रहता है, लेकिन मेरे पास एमआरआई के रिपोर्ट्स है और ऐसे काफी पेशेंट है उनका स्टेनोसिस भी रिवर्स यानी कम हुआ है, और उसके माध्यम से बाकी जो तकलीफ होती है, ये नमनेस है या चिमचिमाहन, ये सब लक्षण है वो कम होते हैं, पेशेंट की मोबिलिटी नॉर्मल हो जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। ये लेकिन कभी भी आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं तो आहार, विहार और औषध ये क्रम रहता है। तो डाइट कंट्रोल, विहार मीन्स एक्सरसाइज, व्यायाम, और थर्ड नंबर इज मेडिसिन। तो मेडिसिन में अभ्यंतर चिकित्सा हो या बस्ती हो, इसका अंतर्भाव करते हैं। इसे थोड़ी दीर्घकालीन चिकित्सा करनी पड़ती है ये विकारों में, क्योंकि अदरवाइज लोग सालों तक दवा लेते हैं। अपने यहाँ 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने दवा लेने के बाद वो पूर्णतः ठीक होते हैं। स्पाइनल कॉक्स के केस मेरे पास थी। हड्डियों में एक स्कूल की टीचर थी और कॉक्स के वजह से उस समय उनको स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन दिए जाते थे और बाकी एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट, ये सब देने के बावजूद भी उनकी रीढ़ की हड्डी की समस्या वैसी ही थी। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन के सभी जो साइड इफेक्ट्स है, वो टिनिटस, स्टोमाटाइटिस, ये सब डेवलप हुआ था। तो ये लेडी किसी के संदर्भ से मेरे पास आने के बाद उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, क्या करना है? तो मैंने उसे अभ्यंतर चिकित्सा के साथ तिक्तक्षीर बस्ती और उसमें अस्थि मज्जा घृत और महातिक्त घृत ऐसे अल्टरनेट देकर ट्रीटमेंट चालू किया।
तो बाद में वो स्टोमाटाइटिस यानी मुखपाक चला गया, टिनिटस कम हो गया और वो धीरे-धीरे चलना भी उसको मुमकिन हो गया। लोकल स्नेह स्वेदन हल्के हाथ से और अभ्यंतर चिकित्सा ये अनिवार्य है। लेकिन वो बाद में ड्यूटी जॉइन कर वो स्कूल में पढ़ाती थे। तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जैसे केस भी हम ट्रीट कर सकते हैं। स्लिप डिस्क और ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस ऐसे जो पेशेंट आजकल रहते हैं, वो ये तिक्तक बस्ती के माध्यम से हम अच्छे परिणाम उससे देते हैं। यंग युवावस्था में लड़कियों में प्रायः ऐसे देखता है वजन नहीं बढ़ता है। कभी-कभी कुछ लड़के भी आते हैं कि कृश है और बिल्कुल अस्थि पंजर यानी अस्थि और उसके ऊपर त्वचा का आवरण है। ऐसे पेशेंट है तो उसमें हम तिक्तक बस्ती, शतावरी या अश्वगंधा घृत मिलाकर देते हैं। तो उससे वजन बढ़ता है और जो कृश्यता है वो जाती है। मैंने पहले भी स्तन्य वृद्धि के समय बताया था कि तिक्तक क्षीर और शतावरी घृत देने से वजन बढ़ता है और त्वचा का जो टेक्सचर है यानी कांति वर्ण ये भी उसे अच्छी तरह से प्राप्त होता है। जाते-जाते जानकारी इसलिए कृशता में मैं पंचामृत के भी बस्ती देता हूँ। अब भगवान को पूजा करते समय पंचामृत का नैवेद्य दिखाते हैं, तो उसमें दूध, घृत, शर्करा, मधु और दही ऐसे रहता है। वो ये पंचामृत जो है वो उसमें थोड़ा दूध का प्रमाण ज़्यादा करने का क्योंकि वो प्रवाही होना चाहिए और ऐसे पंचामृत के बस्ती देने से भी कृशता कम होती है। मेरा अनुभव ऐसा है कि 10 बस्ती का एक कोर्स करेंगे, तो 1 डेढ़ किलो वज़न बढ़ता है। आजकल कोर्स का ज़माना है। बी कॉम्प्लेक्स की इंजेक्शन लो, विटामिन डी की गोली खाओ, ये फलाना इंजेक्शन हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो। तो ऐसे अपने भी ये कोर्स उन्हें बताना पड़ता है कि ये 10 बस्ती करो, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये कृशता में तिक्तक क्षीर बस्ती, अश्वगंधा या शतावरी घृतम ऐसे अल्टरनेट या आवश्यकता है तो नित्य देकर वज़न बढ़ा सकते हैं। 10 बस्ती में पौना 1 किलो वज़न बढ़ता है। आपको जैसे जितनी वृद्धि चाहिए उसके अनुसार बस्ती का कालावधि आप तय कर सकते हैं। आजकल वात प्रधान व्याधियों की संख्या वात व्याधि की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे 40 42 साल में पहले 20 साल में जो पेशेंट मैंने नहीं देखे थे, ये अभी के 20 साल में इतनी बड़ी मात्रा में मैं देख रहा हूँ। उसमें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है उसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, मस्कुलर एट्रोफी है, ऐसे भी पेशेंट उसमें भी मॉडर्न में वैसी कंफर्म ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे पेशेंट में आभ्यंतर चिकित्सा, अग्निकर्म उसके साथ तिक्तक क्षीर बस्ती में महातिक्तक घृत, शतावरी घृत या घृत और तैल व्यत्यास में बस्ती देते हैं। यानी आज तिक्तक क्षीर और महातिक्तक घृत, कल तिक्तक क्षीर और महानारायण तेल ऐसे व्यत्यास में बस्ती देने से ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट है तो उसमें अच्छा परिणाम होता है। मस्कुलर जो एट्रोफी हुई है वो नॉर्मल आते हैं। वेट बेरिंग कैपेसिटी उसकी कम हुई रहती है, वो भी धीरे-धीरे सुधरती है। उसके साथ अग्निकर्म या अन्य ये स्वेदन के जो अपने पत्र पिंड पोर्टलिस हुए या अलग-अलग प्रकार के श्वेत बताए उसका आप उपयोग करते हैं तो ये पेशेंट में भी अच्छा परिणाम हम देते हैं। इसमें हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी दोनों में एक बस्ती एक ही देना पड़ता है। जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। वैसे इसमें बस्ती यही है, बाकी आभ्यंतर चिकित्सा में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे अलग-अलग विकारों में तिक्तक बस्ती का परिणाम हम अनुभव करते हैं। एक बड़ा स्पेक्ट्रम मिलता है जो सीएनएस रिलेटेड या मस्तिष्क रिलेटेड व्याधि है, उसमें उन्माद, अपस्मार, बुद्धिमांद्य है, हाइड्रोसेफालस है, माइक्रोसेफालस है, डाउन सिंड्रोम है, मंगोल चाइल्ड है। ऐसे भी पेशेंट आजकल काफ़ी प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलते हैं। अपस्मार तो ऐसा है, लोगों की समझ ऐसी है कि अपस्मार कभी भी ठीक नहीं होता है। मैं आपको आम्बसमार के पूर्णतः ठीक हुए हैं और 25-25 साल तक का उसका फ़ॉलो-अप है कि जो बाद में उनको अपस्मार का एक भी वेग नहीं आया। ऐसे काफ़ी पेशेंट दिखा सकता हूँ। तो उन्माद और अपस्मार में तिक्तक्षीर का उपयोग हम करते हैं, तिक्तक्षीर बस्ती का। तो उसमें पंचगव्य घृत या महाकल्याणक घृत ऐसे उसमें हम बदल कर सकते हैं।
लेकिन उसके साथ नस्य अभ्यंतर चिकित्सा बाकी जो भी है वो करना आवश्यक रहता है। मुझे याद है कि एक कोंकण से एक पेशेंट आता था, वो उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके घर में काफ़ी वैद्य है, लेकिन वो अकस्मात गंभीर होने के बाद मुंबई में आना, ट्रीटमेंट लेना, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है उसके साइड इफेक्ट भी काफ़ी रहते हैं। एक बार मैं कोंकण में गया था चिकित्सा शिविर में, तब उसकी मुलाकात हो गई। बाद में मैंने उसे ये तिक्तक्षीर बस्ती, नस्य, अभ्यंतर चिकित्सा ऐसे किया। उसका निदान कृमिज अपस्मार ऐसे मैंने किया था। अभी वो लड़का बाद में 10वीं 12वीं पढ़ गया, पढ़ाई हो गई। बाद बाद में वो याज्ञिकी यानी सब ये भिक्षुकी करता है। अभी ज्योतिष शास्त्र में उसका वो कोंकण रीजन में काफ़ी बड़ा नाम है। इतनी पढ़ाई उसकी हो गई, लेकिन अदरवाइज़ वो अपस्मार की गोली खाता था तो ये उसकी प्रगति नहीं हो सकती थी। लेकिन उसको भी ये तिक्तक्षीर, पंचगव्य, महाकल्याणक गुरुत्व ऐसे अल्टरनेट बस्ती, अभ्यंतर चिकित्सा के साथ हमने काफ़ी साल तक दिए हैं। अभी ये घटना को 25 साल हो गए, आज तक बाद में उसको अपस्मार का वेग एक बार भी आया नहीं है। उन्माद के पेशेंट में भी बस्ती, नस्य, इसमें नस्य का भी पंचगव्य घृत का नस्य भी करना पड़ता है। अन्य चिकित्सा के साथ मेंटल रिटार्डेशन, ये भी पेशेंट आजकल प्रैक्टिस में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें डाउन सिंड्रोम है या अलग-अलग प्रकार की ये कंजेनिटल बीमारी है, जातज व्याधि हम कह सकते हैं। तो उसमें ठीक होने की मर्यादा है, लेकिन हम कहते हैं कि जितना बीमारी है उसे हम 4 स्टेप्स आगे जाएँगे तो भी अच्छा है। डाउन सिंड्रोम के काफ़ी पेशेंट मैंने किए हैं। किसी बच्चे को हमने नॉर्मल स्कूल में एंट्री दिया है, इतना परिणाम होता है। मेरे ही एक पड़ोसी, डिलीवरी के बाद मालूम हो गया, पहली लड़की नॉर्मल और लड़का डाउन सिंड्रोम। वो डाउन सिंड्रोम आपको सबको मालूम है, उसका वर्णन मैं नहीं करता हूँ। लेकिन वो लड़का हमने तिक्तक्षीर बस्ती, नस्य, अभ्यंतर चिकित्सा करने के बाद वो नॉर्मल स्कूल में पहली कक्षा में हमने उसे एडमिशन करवा दी थी। इतनी उसकी प्रगति हो गई। नासिक के कॉलेज में मैं ऑनररी जाता था हॉस्पिटल में, वहाँ की स्टाफ नर्स ये ओटी की, उसका लड़का भी ऐसे डाउन सिंड्रोम की वजह से, और वो इसमें थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव को भी रहता है। मेरी ओपीडी देखकर एक बार वो मेरे पास आ गई और क्या करना? तो मैंने ये सुझाव दिया और फिर वहाँ वहाँ तो मैं 25 साल ओपीडी में जाता था। तो वो बच्चा इतना बाद में डेवलप हो गया कि वो यकीन नहीं करती है। तो पहले से वो आती थी तो वो बच्चा आजकल और भी उससे प्रगति होती है। तो ये डाउन सिंड्रोम है, बुद्धिमांद्य है, माइक्रोसेफालस है, ऑटिस्टिक चाइल्ड आजकल काफ़ी पेशेंट है, उसकी ग्रेडेशन रहती है। तो हम कम से कम उसमें 2-3 स्टेप्स आगे जाकर उसकी समझ बढ़ाना और बाकी द्रव्यों के जो दुष्परिणाम है ड्रग्स के, वो कम होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे पास अभी हाइड्रोसेफेलस की एक केस है, वो बच्ची थी, उसको आजकल आपको मालूम है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में वो शंट डालते हैं ब्रेन में से, और वो शंट स्टमक में जॉइन करते हैं तो जो पानी निर्माण होता है वो स्टमक में से निकल जाता है। लेकिन उसको एपिलेप्टिक एपिसोड आते थे और उसकी बुद्धि यानी उसकी जो डेवलपमेंट होनी है, ग्रोथ, वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उससे नस्य के साथ मैंने पंचगव्य और महाकल्याण का अल्टरनेट गुरुत्व और तिक्तक्षीर के चालू करने के बाद 6 महीने के बाद उसके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स मैंने बंद कर दिए। अभी उसको 3 साल हो गए, तो आज तक उसको एक भी एपिसोड नहीं आया है। अभी वो सब गणपति स्तोत्र है, हनुमान स्तोत्र है, सब अच्छी तरह से मुखोद्गत है और बाकी की स्पोर्ट्स में भी उसकी प्रगति अच्छी है। इतना ही नहीं, मेरे पास एक एक्सीडेंटल ट्रॉमा का केस आया था। घर में डकैत हो गई और वो लोहे की कुल्हाड़ी से उसके सर में जो घाव लग गया था, तो उसका सब मेंदू यानी ब्रेन बाहर आया था। वो कोमा में था 3 सप्ताह तक और वो हॉस्पिटलाइज़ हो गया। सब उसकी पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हो गई और वहाँ से डिस्चार्ज मिलने के बाद उसको एपिलेप्टिक एपिसोड आना चालू हो गया। बैंक में ऑफिसर था वो मुंबई में एक यहाँ। तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दिन में 13 प्रकार के टैबलेट वो खाता।
तो उसका परिणाम वो सेडेटिव इफेक्ट इतना रहता था कि काम नहीं कर सकता है, दिन भर आंख बंद और सुस्त जैसा रहता था। तो उसे किसी ने नाम बताया, वो आने के बाद इसमें कुछ हो सकता है क्या? अभी ये एक्सीडेंटल इंजरी है, तो उसमें आज तक मैंने अनुभव नहीं किया था, लेकिन मैंने देखा कि प्रयास करेंगे। तो हमने इसे पहले योग बस्ती करके शोधन करवा लिया और बाद में नस्य के साथ तिक्तक क्षीर बस्ती और पंचगव्य घृत देना शुरू किया। धीरे धीरे 4 महीने के बाद उसके एपिलेप्टिक एपिसोड कम हो गए। बाद में हमने ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दिन में 13 जो लेता था वो कम करके अभी वो आधी गोली के ऊपर आया, आधी गोली दिन में एक ही बार। अभी वो शाहपुर यानी मुंबई में वहां से 40 किलोमीटर दूर वो बैंक में जाता है, बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर है वो बड़ा। अभी पूरा ट्रैवल करता है, आज तक उसको एपिलेप्टिक एपिसोड बिल्कुल आया नहीं। तो ऐसी भी केस हो सकते हैं। मैं प्रैक्टिस में ऐसे कहता हूँ कि कभी केस नकारना नहीं, ये आयुर्वेद में नहीं हो सकता है, ऐसे करेंगे तो आयुर्वेद के ऊपर ब्लेम लगता है। तो डेयर एंड एक्ट ऐसे हम बोल डेयरिंग करो और कृति करो तो आपको चिकित्सा में यश मिलता है। तो ऐसे उन्माद अपस्मार या मेंटल रिलेटेड डिसीज जितने हैं वो हमने काफी किए हैं। जैसे एंसेफेलाइटिस के प्रकार देखते हैं कि मिलते हैं, वो अलग अलग बीमारियों की बात, उसके भी मैंने पेशेंट किए हैं, लेकिन वो 100% क्योर नहीं होते हैं, लेकिन हम 1 स्टेप 2 स्टेप दे सकते हैं। अभी मैंने पहले ही व्याख्यान में बताया था दृष्टि मांद्य के बारे में। तो तिक्तक्षीर में महात्रिफला या जीवनत्यादि घृत देकर विशेषतः डायबिटीज के बाद दृष्टि कमी होती है। तो ऐसे किसी का माइक चल रहा है। I request if anyone having their mics on, please unmute your mic. Please mute your mic. आ रही मेरी आवाज? आ रही डॉक्टर साहब, आ रही। हाँ हाँ, तो ये दृष्टि मांद्य के पेशेंट भी आजकल काफी देखने के लिए मिलते हैं। उसमें महात्रिफला घृत, तिक्तक्षीर या जीवनत्यादि घृत ऐसे हम प्रयोग करते हैं तो उसका परिणाम देखने के लिए मिलता है। चश्मे का नंबर कम होता है, स्पेक्स का। अभी एनडीए में एडमिशन लेने वाले 2 लड़के, उनको मेडिकल में वो खाली चश्मा की वजह से अनफिट हो रहे थे। तो 1 ही महीने के समय में मैंने उसे तिक्तक्षीर और ये महात्रिफला घृत की बस्ती दिया। सर आपका म्यूट हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। देखो आ रहा है? जी सर आ रही है आवाज सर। आ रही है। कब से नहीं आ रहे थे मेरी आवाज? दृष्टि मांद्य के मैं बोला तो सुनने में आया था आपको? हाँ जी सर, दृष्टि मांद्य आ गया था सर। एनडीए वाले लड़के की कहानी सर। ये अंतरदाह की एक केस थी। इतनी गर्मी शरीर में, थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं आता है, लेकिन वो सोता है तो बिस्तर और जमीन भी गर्म होती थी। तो मैंने उसे तिक्तक्षीर में यष्टि मधु घृत मिलाकर उसके बस्ती चालू की है। तो एक 15 दिन के अंदर ये सब गर्मी कम होकर उसका एकदम नॉर्मल हो गया।
अंतर्दाह, ये अपने यहाँ ऐसे लक्षण बताया है पित्त वृद्धि में। तो ये यष्टि मधु घृत के माध्यम से और तिक्तक क्षीर, उसका अच्छा परिणाम हमने देखा है। कृमि के पेशेंट प्रैक्टिस में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, am I audible to you? चालू है। हाँ, अब आ रही है आया सर। अभी? जी सर, जी सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बीच में? ठीक है, बोलूं मैं? बोलिए डॉक्टर साहब। अभी आ रहे हैं? आ रही आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कृमि के पेशेंट भी आजकल प्रैक्टिस में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो उसमें तिक्तक क्षीर और वावडिंग का चूर्ण मिलाकर उसके बस्ती देते हैं, तो कृमि के पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, ऐसा हमारा अनुभव है व्यक्तिगत। परिणाम शूल या अल्सर, ऐसे जो पेशेंट है पेप्टिक अल्सर, उसमें भी यष्टि मधु घृत और तिक्तक क्षीर, इसका आप उपयोग करते हैं तो अल्सर हील होने में अच्छा उपयोग होता है। ये एंटासिड खाकर लोग अपना शरीर बर्बाद करते हैं, उसके बदले आप अल्सर्स में यष्टि मधु घृत या शतावरी घृत और तिक्तक क्षीर, ऐसे आप सर फिर से म्यूट हो गया आपका फोन। सर आपका फोन फिर से म्यूट हो गया है, बार बार म्यूट हो जा रहा है। सर हेलो। आवाज आ रही है? रही अभी? हाँ, अब क्लियर है, अब क्लियर है सर। ठीक है। तो ये पित्त प्रधान जितने भी व्याधि हैं, तो उसमें तिक्तक क्षीर, यष्टि मधु या शतावरी घृत ऐसे आप देते हैं तो उसका परिणाम हम अच्छे प्रकार से, और ट्रीटमेंट का कालावधि कम होता है। नहीं तो अल्सर के सालों तक ट्रीटमेंट लोग लेते हैं, उसके बदले आप ये बस्ती का उपयोग करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होता है और कालावधि चिकित्सा का कम होता है। कुष्ठ में बस्ती नहीं देना ऐसे काफी कहा अपना रेफरेंस है, लेकिन जीर्ण व्याधि जो है, सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, जिसे आप एक कुष्ठ कह सकते हैं, विचर्जिका कह सकते हैं, उसमें जब भी वात प्रधानता ज्यादा है तो उसमें उस समय तिक्तक क्षीर और महातिक्त घृत के बस्ती आप देते हैं, तो ये कुष्ठ में भी उसका परिणाम हमने देखा है काफी हद में। बाकी अभ्यंतर चिकित्सा, लोकल एप्लीकेशन सर फिर से म्यूट हो गए आप। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, आ रहा है आवाज? हाँ जी, हाँ जी सर। क्या नेटवर्क का कुछ इशू है शायद? जी सर, जी सर, कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। ठीक। तो कुष्ठ के बारे में मैं बोल रहा था। जीर्ण व्याधि जो है, सोरियासिस, एक्जिमा जैसे, जिसे हम एक कुष्ठ, विचर्चिका ऐसे कह सकते हैं, तो उसमें तिक्तक क्षीर और महातिक्त घृत देने से काफी अच्छा परिणाम हमने देखा है। उसमें घृत अलग अलग बनाकर आप उपयोग कर सकते हैं।
तो त्वचा विकार में बस्ती नहीं देना है, ऐसे कहीं अपने रेफरेंस है तो, लेकिन हम उसके प्रैक्टिस में उपयोग करता हूँ। प्रमेह के पेशेंट ज्यादा आजकल है, डायबिटीज से विश्व की समस्या बन रही है। तो ज्यादा शुगर बढ़ने के बाद गुड़ूची स्वरस और तिक्त क्षीर ऐसे मिलाकर आप बस्ती देते हैं या गुड़ूची स्वरस से, तो उसे शुगर लेवल कम होती है। आवाज आ रहा है अभी? है सर, आ आ रहा रहा है? है सर, आ हाँ रहा। हाँ। प्रमेय में भी बस्ती हम देते हैं तिक्त क्षीर के साथ महातिक्त घृत, गुड़ूची सिद्ध घृत या अलग अलग प्रकार के, तो उससे हम अच्छा परिणाम, शुगर लेवल कम करना और डायबिटीज के जितने कॉम्प्लिकेशंस है उसमें बस्ती का उपयोग होता है। दंतोद्भव देर से होता है, ऐसे लड़के मिलते हैं नॉर्मली 6वें 7वें महीने के बाद दांत आना ये अनिवार्य है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे 1 साल 1.25 साल के बाद भी दांत नहीं आते हैं, तो उसे खाली तिक्त क्षीर और महातिक्त घृत ऐसे आप इस्तेमाल करो बस्ती। तो बच्चों में मात्रा कम देनी है, अभी 1 साल का बच्चा है तो 30 ml इतनी मात्रा या 40 ml उसमें होता है। तो एडल्ट है, पेशेंट बड़ा है तो उसको 100-120 ml तक होती है। ऊंची किसी की कम रहती है, तो ऊंची बढ़ाने के लिए भी मेरा अनुभव है 15 बस्ती के बाद आधा इंच ऊंची बढ़ती है। तिक्त क्षीर और महातिक्त घृत या अस्थि मज्जा घृत ऐसे देने से ऊंची बढ़ाने के लिए भी होते हैं। तो जितने अस्थि मज्जा स्त्रीत व्याधि जितने भी है उसमें तिक्त क्षीर बस्ती का उपयोग होता है। और एक आश्चर्यजनक केस मेरे पास हुई थी, जो एक शिरोग आघात की केस मैंने बताई, वैसे एक ट्रैक्स का एक्सीडेंट हो गया और एक 5-6 साल की लड़की, उसमें उसको भी हेड इंजरी हेवी हुई थी। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया था। वो सब पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होने के बाद उसकी दृष्टि कम हुई थी, उसकी स्मृति गई थी, उसको गंध ज्ञान नहीं था और उसकी वाचा गई थी, यानी 4 सेंटर उसके डैमेज हुए थे। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो? आ रहा है सर, आ रहा है, आ आ आ रही रहा है, है। आ रही है। ठीक है, तो ये 4 सेंटर उसकी हेड इंजरी में डैमेज हुई थी, उसको गंध ज्ञान नहीं था, वाचा उसकी कम हो गई थी, उसकी मेमोरी कम हुई थी और दृष्टि कम हुई थी। तो वो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्होंने बताया कि अभी ये उसकी संज्ञा वगैरह मिला नहीं मिलेंगे, हमें याद नहीं, देखो काला या तस्मै नमः। तो किसी ने वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास भेज दिया, तो मैंने उससे पहले अभ्यंतर चिकित्सा, नस्य ये सब करने के बाद तिक्त क्षीर शुरू किया है। और ये जो ब्रेन सेंटर्स डैमेज है तो उसमें क्या करना ऐसा सोच रहा था। तो अपने यहाँ सिद्धांत है वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीते ही विपर्ययः। तो समानाने समानाची वृद्धि, ये अपना जो सिद्धांत है, तो इसके लिए हमने, मेरे स्टूडेंट उस समय जो नॉनवेज खाने वाले थे, हमारे यहाँ एक आगरी समाज है, वो मुंडी मसाला खाते हैं, बोकड़ जो काटने के बाद मुंडी रहती है उसकी, वो पकाकर वो खाते हैं, उनकी एक स्पेशल डिश है। तो मैंने सोचा कि ये ब्रेन से रिलेटेड व्याधि है, तो ये उसका हम घृत क्यों न सिद्ध करें। तो ये मुंडी मसाला बनाने वाले जो थे उनसे मैं बताकर उसका घृत सिद्ध किया। उसका नाम मैंने दिया मस्तिष्क घृत, क्योंकि वो मुंडी यानी भेड़े की वो मेंदू ही है सब, मस्तिष्क। और मैंने तिक्त क्षीर और ये मस्तिष्क घृत देना शुरू किया, तो 3 महीने के बाद वो लड़की जो है उसको गंध ज्ञान, दृष्टि, स्मृति और वाचा चारों हो गया। तो सद्भाग्य से मुझे कोई व्यसन नहीं, लेकिन मुझे इत्र यानी अत्तर लगाने का शौक है। तो बाद में वो लड़की आती थी, आज डॉक्टर अंकल ने गुलाब का अत्तर लगाया, ऐसे वो कहता। बाद में उसको स्कूल में बचपन में जो भी कथाएं और पोएम सिखाए थे वो बोलना चालू हो गया। तो एक ऐसी गंभीर और एक अलग प्रकार की केस तिक्त क्षीर बस्ती और मस्तिष्क घृत से ठीक हो गई। अभी वो नॉर्मल है, उसकी साल अभी 22-25 साल की वो लड़की है, शायद अभी उसकी शादी भी हो गई होगी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव प्रैक्टिस में आते हैं। और एक जिसे हम कहते हैं मामूली सा उपक्रम, लेकिन उसके
ऐसे परिणाम लेते हैं कि उससे आपको यश, कीर्ति, धन सब मिलता है। इंद्रलुप्त ऐसा एक क्षुद्र विकार में अपने आप व्याधि बताया है। तो ये इंद्रलुप्त का एक लड़का मेरे पास आया था, शादी के बाद तुरंत उसे इंद्रलुप्त की व्याधि हो गई। तो क्या करना? तो लोकल एप्लीकेशन वगैरह तो हम करते ही हैं। तो उसके साथ मैं तिक्त क्षीर बस्ती और उसे महातिक्त घृत और शतावरी घृत ऐसे अल्टरनेट देता था। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि बस्ती देते समय पेशेंट से बातचीत करनी चाहिए और पेशेंट को अलग अलग प्रकार की जानकारी देना आवश्यक रहता है। तो उसे बस्ती देते समय मैंने ऐसे ही पूछा कि अभी मैं आपको बस्ती दे रहा हूँ, 1 महीना हो गया, आपको इसका कुछ अलग फायदा देखने के लिए मिला क्या? नहीं। तो बोला क्या इस प्रकार का? तो मैंने बताया कि इसे आपकी थकान है तो कम होगी, कमर दर्द हो, लेग क्रैम्प्स हो, ये भी उससे कम होते हैं, उत्साह आपका बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा। तो उन्होंने मुझे बताया, डॉक्टर साहब एक चीज मेरे ध्यान में आया कि शादी के बाद पहले कुछ महीने में एक रात में 2 बार मैं संभोग कर सकता था, शरीर संबंध। लेकिन उसके बाद काफ़ी साल बीच में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये अभी मैंने बस्ती चालू किया है, उसके बाद ये मुझे फिर से उतना स्टैमिना मिल गया है। तो ये आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ऐसे जो पेशेंट मिलते हैं, तो उसमें भी ये तिक्त क्षीर बस्ती, उसमें आप शतावरी घृत या कवच भी सिद्ध घृत ऐसे करेंगे तो ये सेक्सुअल डिसीज जो है, उसमें भी अलग परिणाम दिखता है। तो बस्ती करते समय बात करना, उसे कुछ जानकारी देना, उसमें ये अनुभव मुझे सुनने को मिला। तो ये ऐसे बीमारियों में भी हम आयुर्वेदीय चिकित्सा से अच्छा परिणाम देखते हैं, क्योंकि मॉडर्न में इसके लिए चिकित्सा है नहीं। लेकिन उसके साथ अपनी जो चिकित्सा सिद्धांत है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन का काल अपने यहाँ बताया, माध्याह्न और सूर्यास्त। ऐसे जो सेक्सुअल डिसीज के पेशेंट है, उसमें सूर्यास्त के पहले ही भोजन होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। और फिर रात को सोते समय सद्य शुक्र कर पया ऐसे बताया, तो आप सिद्ध क्षीर दे सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार का परिणाम आप अपने प्रैक्टिस में देख सकते हैं। अभी इसके बारे में 2-4 बात ऐसी है कि तिक्त रस ही क्यों चुना है? तो ये तिक्त रस वायु और आकाश का प्राधान्य है उसमें, और ये घृत के साथ देने के बाद ये अस्थि और मज्जा संबंधित इतने व्याधियां भी हमने देखे हैं। तो आपको याद होगा 3 दोष, 7 धातु और 3 मल है। तो ये 7 धातुओं के उपधातु और मल, इसकी भी समस्या, और 3 दोषों के भी जितने व्याधि हैं, इस सब प्रकार के व्याधियों में हम तिक्त क्षीर बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। बस्ती का ही उपयोग क्यों करना? तो या एव पुरुष धरा कला, सा एव मज्जा धरा कला, ऐसे अपने यहाँ रेफरेंस है। तो ये पक्वाशय में से एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। और जैसे अपने यहाँ वर्णन है कि पेड़ के मूल में पानी आप करते हैं तो ऊपर के पत्ते भी अच्छी तरह से होते हैं। तो ये मस्तिष्क स्थित व्याधि जो है, उन्माद, अपस्मार है या ऑटिस्टिक चाइल्ड है, माइक्रोसेफेलस है, उसमें भी बस्ती देने से बुद्धि की वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे ही एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वैसे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कल्प कर्म आपने यहाँ बताया है। तो ये तिक्त क्षीर बस्ती धातु, उपधातु, धातुओं के मल, तीनों दोषों के व्याधि में अच्छी तरह से काम में आता है। तीसरी एक बात ऐसी है, स्नेह द्रव्य जो है, जिसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं, वो मज्जा निर्मित में काम करता है। तो इसलिए ये मज्जास्त्रित व्याधि है, उसमें तिक्त क्षीर के साथ घृत देने से वो सभी व्याधियों में अच्छा परिणाम होता है। और डीजनरेशन जो है, इसे मैंने बताया वैसे शुक्र तक काम होता है। तो ये अपने यहाँ प्रीणनम जीवनम लेपहा स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादस्य धातूनाम श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म क्रमात्। तो ये पुनर्निर्मित का कार्य शुक्र का है। ये शुक्र की वृद्धि तिक्त क्षीर से होती है। तो ये अंत तक गए हुए जितने व्याधि हैं, सप्त धातु या धातु अग्नि मांद्य तक, तो सभी प्रकार के व्याधि में ये तिक्त क्षीर बस्ती काम में आता है। आजकल कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी, इसके लिए भी अलग अलग प्रकार के कोर्स लोग करते हैं। उसके बदले ये चिकित्सा आप करेंगे तो अच्छा परिणाम देखते हैं। और 2 अलग प्रकार के केस मैंने ट्रीट किए हैं, वैसे काफी बड़ी प्रकार में। उसमें अवैस्कुलर नेक्रोसिस,
ये आज कोरोना के बाद तो काफी पेशेंट हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये लड़की आई थी शादी के पहले, ने उसकी उम्र 22-23 साल की होगी, और वो भी ये मैंने बताया हमारे आगरी समाज है उसमें वहाँ की थी। वो चूल्हे के ऊपर सब उसका जो खाना बनाने का है वो चूल्हे के ऊपर करती है, उसको बैठना मुश्किल था। तो मेरे पास आने के बाद ये जो सूत्र है आस्त्या शरणम वैद्यनाम पंचकर्माणि भेषजम, तो मैंने अभ्यंतर चिकित्सा के साथ उसको तिक्तक क्षीर बस्ती देना शुरू किया। धीरे धीरे ये वंक्षण संधि का शूल, बाद में वंक्षण संधि का ग्रह स्तंभ, ये सब लक्षण कम हो गए, मोबिलिटी बढ़ गई, वेदना कम हो गई, धीरे धीरे चलना दौड़ना सभी प्रकार के घर के काम वो करना शुरू हो गया। बाद में उसके शादी की सोच हो गई, और शादी के बाद कुछ तकलीफ हो सकती है ऐसे उसका मुझे और उसके माता पिता का सवाल था। मैंने बताया कि देखेंगे, आप शादी तय करो, बाकी कुछ समस्या है तो हम उससे निपट लेंगे। तो उसकी बाद में शादी हो गई। शादी के बाद डिलीवरी के समय क्या तकलीफ हो सकती है, कि ऐसे भी उसके मन में शंका थी, और ये स्वाभाविक है। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि ये सब बस्ती मैंने उसे कम से कम 7-8 महीने तक दिए थे। बाद में उसकी शादी के बाद कंसीव हो गई, 2 डिलीवरी नॉर्मल हो गए। यानी अस्थि का जो क्षय हुआ था, वो कितने हद तक उसकी रिकवरी हो गई, तो डिलीवरी भी नॉर्मल हो गई। अभी उसके दोनों बच्चे भी अभी 14-16 साल के हो गए हैं। तो ऐसे एक अलग प्रकार के अभी मेरे पास एक 8 या 9 वेटरनरी डॉक्टर्स है कि जिनको एवियन की तकलीफ है। अभी मुझे मालूम नहीं है वेटरनरी सर्जन को ही एवियन क्यों होता है, लेकिन वो भी सब ऐसे ही चिकित्सा से काफी हद तक ठीक है। इसमें एक मुझे ऐसे ध्यान में आया कि काफी पेशेंट में बाद में एमआरआई हम करते हैं, तो उसमें जो पहले का एमआरआई का रिपोर्ट और आखिर का उसमें बदल नहीं देखने के लिए मिलता है। लेकिन क्लिनिकली पेशेंट फिट है, वो मांडी डाल के बैठता है नीचे, गाड़ी चलाता है, चलना कूदना सब होता है, लेकिन एमआरआई के रिपोर्ट में वही रहता है। कुछ पेशेंट के रिपोर्ट में पूर्णतः नॉर्मल, ऐसे ग्रेड 3rd है तो ग्रेड 1st या नॉर्मल हो गया, ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो ये अपनी चिकित्सा की एक जिसे हम कहते हैं विशेषता है। जो स्पाइनल स्टेनोसिस के बारे में भी मैंने बताया, वैसे एमआरआई के रिपोर्ट में बदलाव नहीं देखने के लिए मिलता है कभी-कभी, लेकिन पेशेंट क्लिनिकली टोटल ओके रहता है। तो ये एवियन के पेशेंट अवास्कुलर नेक्रोसिस काफी मात्रा में मैंने किया है। यानी ऐसे बोलना थोड़ा उचित नहीं हो रहा है, सैकड़ों की संख्या में किए हैं, और एक जिसे हम कहते हैं डंके की चोट पर ऐसे रिजल्ट देने वाला एक तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रकार है। एक इंटरेस्टेड केस मैंने किया है, जिसे क्लब फुट कहते हैं। जातज व्याधि है, जन्म हुआ तभी वो लड़की के पाँव जो है बिल्कुल उल्टे थे। हम ऐसे मराठी में या अपने यहाँ ऐसी समझ है कि भूत जो रहता है उसके पाँव और हाथ उल्टे रहते हैं। वैसे वो लड़की पैदा हो गई तो उसके दोनों पाए बिल्कुल उल्टे हुए थे। क्लब फुट इसे कहा जाता है, और उसकी माँ डायटिशियन है। तो वो मैं एक हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती करने के लिए गया था, तो वो डायटिशियन मुझे पहचानती थी। उन्होंने बताया डॉक्टर साहब एक समस्या है, ऐसा-ऐसा है, क्या कर सकते हैं? तो उसे आफ्टर डिलीवरी एक उसके क्लब फुट यानी बिल्कुल उल्टे पाँव थे, तो सर्जिकल प्रोसेस करके वो सीधे कर दिए। सीधे करने के बाद टिबिया और एंकल जॉइंट उसमें काफ़ी अंतर था। तो वो खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे जैसे पोलियो में शूज़ देते हैं रॉड वाले सपोर्ट शूज़, तो वैसे सपोर्ट शूज़ पहन के वो चलती थी, स्कूल में जाती थी 3री-4थी कक्षा में, और उसका चल रहा था। लेकिन इतने कैल्शियम के इंजेक्शन और दवा देने के बावजूद एंकल जॉइंट और ये टिबिया उसमें का अंतर कम नहीं जा मेरे जो जानकारी उसके अनुसार 1 इंच तक उसमें गैप थी, और कुछ फ़र्क नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के माध्यम से इसमें कुछ हो सकता है क्या? मैंने बताया लेके आओ, देखेंगे। तो फिर पहले हमने उसे अभ्यंतर चिकित्सा के साथ तिक्तक क्षीर और ये अस्थि मज्जा घृतम ऐसे देना शुरू किया, शतावरी घृतम। बाद में अपने यहाँ जो मैंने सिद्धांत बताया वृद्धि समाने सर्वेषाम, तो हमने ये पाया सूप करते हैं तो अस्थि मज्जा सिद्ध घृत बनवाया। ये बोकड़ के जो हड्डी मिलते हैं पाया सूप के लिए, वो निकाल कर उसमें से मज्जा निकाल कर उसका घृत सिद्ध किया,
और ये अस्थि मज्जा सिद्ध घृत और तिक्तक्षीर ऐसे हम देना शुरू किया। 4 महीने तक अल्टरनेट डे या कभी नित्य यानी हर रोज बस्ती हम देना चालू रखा था। तो एक बार उन्होंने पूछा कि हमें कैसे मालूम हो जाएगा कि उसकी स्टेमिना बढ़ी है या हड्डी बढ़ गए? तो इसके लिए एक एक्सरे फिर से निकालना पड़ेगा। आवाज आ रहा है? तो फिर हमने 4 महीने के बाद वो लड़की का एक्सरे निकालने के लिए बताया। वो डोंबिवली का सबसे सीनियर मोस्ट रेडियोलॉजिस्ट है, उनके पास वो जाती थी और वो एक्सरे उस दिन देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या ट्रीटमेंट कर रही हैं? तो उन्होंने पूछा वो बस्ती दे रहे हो। बस्ती क्या रहता है ये? तो उन्होंने पूछा कौन डॉक्टर है? तो उन्होंने बताया वेलणकर का। तो बताया हाँ, वो जो कोई करता है वो करने दो। लेकिन आश्चर्य की बात ऐसी है कि आपके टिबिया और एंकल जॉइंट के संधि यानी हड्डी बिल्कुल मैच हुए अभी। यानी जो 1 इंच की गैप थी वो सब भर गई है। तो वो इतनी खुश हो गई और ये रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है वो सबसे महत्व का है। और बाद में हमने वो सपोर्ट शूज निकाले, वो नॉर्मल शूज या चप्पल पहनकर चलती थी और उसके बाद हमने उसको स्कूल में स्पोर्ट्स में रनिंग कंपटीशन में सेकंड नंबर में विनर हो गई। इतनी स्टैमिना हो गई। तो ये तिक्तक्षीर बस्ती का जो उपयोग है इतना एक्सट्रीम है और वादातीत है, तो क्या बदल हो सकता है? तो ये हम देखते हैं कि ऐसे जिसे नॉन ट्रीटेबल केसेस हम ट्रीट कर सकते हैं और यश, कीर्ति, धन सब प्राप्त कर सकते हैं। अपने यहाँ जो श्लोक बताया है, क्वचित एषा क्वचित मैत्री चिकित्सा नास्ति निष्फला, तो ये हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के केस योजक स्तर दुर्लभ। अपने जो सिद्धांत दिए हैं उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए और उसका कृति उसमें की करनी चाहिए, तभी आप यश मिल सकते हैं। तो ये तिक्तक्षीर बस्ती में और 1-2 चीज है। सामावस्था है तो वो नहीं लेना है। तो पहले आम पाचन करके लो, दीपक पाचक औषध, कुछ मात्रा बस्ती या योग बस्ती दे के शरीर शुद्धि करना, बाद में ये देना है। बहुदोषावस्था है तो शोधन करके करना है। इसे पूर्व कर्म में स्नेह स्वेदन आवश्यक है, लेकिन हर बार करना होता ही है ऐसा नहीं। मेरे प्रैक्टिस में तो इतना समय नहीं दे सकता हूँ। तो ये पेशेंट को मैं घर में ही बोलता हूँ कि पढ़ाते हैं कि क्या कैसा बस्ती करना बना और देने की व्यवस्था। तो क्योंकि ऐसे बस्ती खाली डिस्पेंसरी में देंगे तो पूरे दिन भर मुझे डिस्पेंसरी में ही रहना पड़ेगा। इसलिए हम घर में सिखाते हैं तो घर का जो भी पढ़ा हुआ आदमी है, माता हो, पिता हो, भाई हो, दे सकते हैं, देते हैं। तो ऐसे ये अलग प्रकार का तिक्तक्षीर बस्ती ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट है। बस्ती आधी चिकित्सा मैंने बताया, वैसे आधी चिकित्सा से ज्यादा परिणाम है। शोधन नहीं होने के कारण दीर्घकाल कर सकते हैं और इसे साथ में होना या उपयोग नहीं होता ऐसे नहीं है। और स्नेह बस्ती वैसे नहीं है, लेकिन हम तिक्तक्षीर में स्नेह द्रव्य डालते हैं तो उसको बाद में कुछ उसे जिसे हम कहते हैं कि जीर्णता के जो लक्षण है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं और अच्छा परिणाम आप सालों तक लेते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप ये तिक्तक्षीर बस्ती जैसा एक छोटा उपक्रम आपके प्रैक्टिस में अलग अलग विकारों में कर सकते हैं। मेरे बुद्धि के अनुसार इतने प्रयोग मैंने किए हैं और भी आगे ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के पेशेंट में करेंगे तो कभी से आपको आपके साथ बातचीत हुई तो कर सकते हैं। लेकिन आपने इसमें और कुछ जोड़ दिया तो मुझे जरूर कहना, तो मेरे अनुभव में एक और एडिशनल हो जाएगा। तो मेरे दृष्टि के अनुसार जितने अनुभव मैंने लिए हैं तो उसका मैंने आपसे सामने प्रस्तुत किया है। आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइए, कुछ उसमें शंका या कुछ प्रश्न है तो मेरे मति के अनुसार उसका सवाल देने का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद सभी को। डॉक्टर विनय जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आपने सुंदर व्याख्यान हिंदी में दिया, इसके लिए मैं हाँ। आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपके जितने जो वस्तु की आपने विस्तृत वर्णन किया, बहुत ही सुंदर ढंग से किया। हमने तो कभी इतना मतलब पढ़ा भी नहीं जितना आपने बताया है अभी अपने व्याख्यान में। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि आपने सारा व्याख्यान हिंदी में दिया। इसमें हाँ। आत्मा हिंदी में रहती है, संस्कृत Thank you so much, sir.
If आवाज anyone has doubts, you may please ask to sir. आवाज आ नहीं रही है, बहुत बढ़िया। अभी आ रही है। मेरा आवाज आ रहा है आपको? आ रहा है, Yes, आ रहा है। sir. हाँ आ रहा है सर, आपका आ रहा है सर। तो त्रिपाठी जी का आवाज सर बंद हो मैं गया। डॉक्टर, हाँ त्रिपाठी बीच जी में का बंद हो गए थे सर। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर कृष्णैया बाल रोग में गुरु हूँ। तो जैसा त्रिपाठी सर से बात बताया, आपका बहुत प्रशंसात्मक ये लेक्चर था सर। ये मैं आपको एक मेरा अनुभव जोड़ना चाहता हूँ हाँ बोलिए। सर। हाँ, एक फैंकोनी एनीमिया, ये जेनेटिक डिजार्डर है सर बच्चों में। हाँ, हाँ। तो बहुत रेयर होता है उनमें। हमने उनमें क्या होता है, हर एक महीने में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। तो बोन मैरो खराब रहता है उनमें जेनेटिक रीजन के कारण। तो हमने इनमें महातिक्तक गुरुत नहीं पंचतिक्तक गुरुत, इससे हमने वस्ती दिया है लगभग 1 साल तक, 1 साल 1.5 साल तक दिया है। मतलब इसमें बीच बीच में हम सिटिंग्स में देते थे। अभी उनके बाद जैसा हमारा हॉस्पिटल में आया, तो पहला एडमिशन किया, उसके बाद उनको कभी ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत नहीं पड़ी। मतलब अभी तक एकदम स्वस्थ है। ये जेनेटिक डिजार्डर है, जीन डिजार्डर है। तो मतलब ये आदिबल प्रवृत्ति व्याधि भी इससे ठीक होता है, हमको ये पता चला। और आपका ये जो लेक्चर से हम बहुत सही और अनुभव हमको दिया है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैंने सर। माइलोफाइब्रोसिस और प्लास्टिक एनीमिया में भी इसका उपयोग किया है। तो हाँ उसमें लेकिन उसमें केवल तिक्तक्षीर नहीं, उसमें बाद में यापन बस्ती और अलग अलग बस्ती भी दिया है। तो माइलोफाइब्रोसिस जैसे डिसीज में भी अच्छा उपयोग होता है। अस्थि मज्जा स्नेह का अपने यहाँ वर्णन आया है चरक सिद्धि स्थान में, उसके बस्ती हमने दिए हैं। एक अपनी आयुर्वेद कॉलेज की लड़की, उसकी बहन को ट्विंस हो गया और वो दोनों लड़की बिल्कुल वजन कम था। तो मैंने उसे दूसरे महीने में तिक्तक्षीर बस्ती 20-20 ml का ही प्रयोग किया। तो 2 महीने में उसका वेट गेन इतना अच्छा हो गया और उसकी सब कांति, त्वचा और जो हम पुष्टि बोलते हैं वो सब अच्छे हो गए। तो बस्ती का जो वयो मर्यादा है, तो ये मैंने दूसरे महीने से भी बस्ती का प्रयोग किया है। लोगों के मन में रहता है कि इसने बालकों में बस्ती देना है नहीं देना है, मात्रा आप तय कर सकते हैं उम्र के अनुसार। हाँ सर। तो वो हमने इसमें ये जो हमने केस बताया आपको, ये आरएवी अभी बाल रोग के ऊपर सेमिनार चला, तो हमारा ये आर्टिकल पब्लिश हो गई सर अभी तो एक साल पहले। अच्छी बात है। हमने तो ये बहुत, और भी हमारा अनुभव है ये तिक्तक्षीर से जो वस्ती देते हैं और 2-3 है सर। और ये तो मैं एकदम आपसे सहमत हूँ सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। ऑटो इम्यून केसेस में आर्थराइटिस के, उसमें दे सकते हैं? कौन सा डिसीज? ऑटोइम्यून में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो मैंने स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलोसिस तभी सर्वाइकल लंबर, आजकल वे HLA-B27 पॉजिटिव या अलग अलग प्रकार के सब पेशेंट हैं। ये अपने दृष्टि से वो उसे आमवात और संधिवात में डिवाइड किया है, लेकिन अवस्था देखकर उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो कभी तिक्तक्षीर देना है, कभी योग बस्ती करना है, कभी लेखन बस्ती देना है, ये सोचकर उसको आप ठीक कर सकते हैं। ये ऑटोइम्यून यानी पर्टिकुलरली HLA-B27 या ऐसे काफी पेशेंट मैंने किए हैं, लेकिन अवस्था के अनुसार उसमें बदलाव करना भी पड़ता है। ओके सर। Do we have any other question? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते।
सर माय क्वेश्चन इज दैट सर कि द तिक्तक्षीर बस्ती हैं जो आपने सर बताई, उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है सर, लाइक डायबिटीज, कार्डियक डिजीज या कोई एनी अदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन सर? नहीं, आज तक तो मेरे 40 साल में नहीं देखा है कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके सर। बिल्कुल नहीं, सर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, कभी किसी को धारण नहीं होता, ऐसे हो सकता है ये बस्ती, लेकिन वो Right, इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेशन। ओके सर। सर अगर इफ पेशेंट इज डायबिटिक एंड प्रेजेंट विद द केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस देन इट इज सुटेबल सर? या नो प्रॉब्लम। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, Thank you so much, sir. सर on जैसे behalf- कर्णनाद होता है, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, ये कर्णनाद टिनिटस जो होता है ना, टिनिटस के लिए भी कोई ऐसा उपाय है इसका? तिक्तशीर बस्ती टिनिटस बस्ती कर्णपूरण और आभ्यंतर चिकित्सा नस्य उसका उपयोग होता है। जी जी, हाँ ठीक, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Now, on behalf of the organizing committee, I would like to thank Vaidya Vinay Velankar, sir, for delivering such an insightful lecture. I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidya Deven Trigunaji, President of GBRAV, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Koteja, sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express our heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars for their presence and active participation for making this webinar a successful one. Thank you all. धन्यवाद।